Hello, everybody, and welcome to the ninth lecture of Computer Applications for Class 9 and Class 10 ICSE. In this lecture, we will be discussing on how to write a program in BlueJ software and how do we compile a program in BlueJ software and how do we run a program in BlueJ software. So we will be taking a look into all of these three things. Also, I will be discussing a very elementary idea about decision-making statements. There are four types of decision-making statements. The first one is if, second is if-else, the third is if-else-if, and the fourth is switch case. Today, in this lecture, I will be discussing about if and if-else. In my previous lecture also, I have discussed about if-else. Again, today I will be discussing about if-else, and also I will write a program in if-else using if-else statements, and I will run it on BlueJ, and I will show you how to do that. The if-else-if statements and switch case statements will be discussed in my coming lectures. Before I begin with today's lecture, let me tell you that you should have watched all the previous lectures before attending this lecture. Lecture 1 to lecture 8 are already uploaded in my channel in a separate playlist, which you will find in my playlist section. The name of the playlist is Computer Applications for Class 9 and Class 10. If you have not subscribed to my channel yet, please subscribe to the channel and also press the bell icon next to it so that whenever I upload a video, you get an instant notification for that. So, without wasting any time, let us start our topic. You have to install a software known as BlueJ on your computer system. You have to type the website on your browser, bluej.org. There are many similar websites which claim to be the original websites, but they are not the original websites. You have to be very careful about that. The original website is bluej.org. You have to type this www.bluej.org on your browser and the web page will open. There you will find the option to download. The very home page has that option, how to download. You just scroll down a bit, you will find that there are four options. If your system is Windows, then you have to press that Windows option. Then for Apple, you have that Apple iOS option. Then for Ubuntu, you have the third option. And for other platforms, you have the fourth option. So since my computer is Windows based, so I have clicked on that Windows and I have downloaded the BlueJ software. So I'm now straight away moving to my BlueJ software. As soon as I open my BlueJ software, it looks something like this. So now you can see my BlueJ software. Okay. So you can see the logo of BlueJ over there. Okay. Now what is the first thing that you have to do? The very first thing for the very first time when you open this software, you will find that nothing is present on this white screen. Right now you can see an icon, right? You can see an icon over here, this particular icon you can see. But when you open it for the first time, you will not find this icon. So this is basically a project which I have already created. But for the first time when you will open your BlueJ, you have to create a project. How will you create a project? You have to go to this particular tab, project, click karna. When you will click on project, then new project, you have to click on new project, this particular topic. You can see the first option, new project. And after clicking on new project, you will have to create a new project. You can give any name and then you will find this option has come. This icon has come. So this is an icon which represents that you have created a project. Now, inside a project, we will be writing a program. How do we start writing a program? You have to click on new class. New class. Can you see here? New class. So after you have created a project, this particular button, new class, will be made active. Before creating a project, this button will not be activated. So only you have created a project, you will find this button, new class button, activated.
Now you have to click on new class, and then I'll show you how to do the rest of the things. So I will click, my project is created. I will click on new class. As soon as I created a new class, you see the dialog box of create new class has opened up, and it is asking me the class name. Now, what do I mean by class name? Now, at the very beginning of during my starting of my course, in my lectures, in my beginning lectures, I had told you that we write a program in a class. We have to name a class. And I've also told you how do we create a class, how do we name a class. We write class and then the class name. So basically here they are just asking us to write the class name. So I'm writing the class name as demo. What's my class name? Say demo. Okay, I've written DEMO demo, and you can see it is a class. The class button, the radio button of class is already pressed. You can see here. Okay, I'll click on OK now. So now demo naam ka mera class create ho gaya. Can you see an icon has come again, a new icon? Okay, what will I do here? I have to write a program. Now, how will I write a program? I will be coming on this demo icon and clicking on the right mouse button, right mouse, not left, right mouse button. The moment I clicked on right mouse button, I got a pop-up menu comes up, which has open editor, compile, delete, duplicate, convert to Stride, and create test class. There are so many options in this pop-up. I will create an open editor. तो मैं अभी open editor पे click किया. देखो क्या खुलता है. You see this opens up. This is the place where I will be writing my Java program. So this is the editing editor. This is the editor where I will write my program. So you know, various things are written. Okay, I have to delete the entire thing. So I will press Control A. पूरी चीज select हो गई. मैंने पूरी चीज को delete कर दी. Because I don't need that. A pre-designed thing was there. तो मुझे उसमें कुछ modify नहीं करना था. मैंने पूरी चीज को delete कर दी. Control A, delete. ठीक है? Here I will write my program. So I can write my program. Now each of the programs will start with the declaration of a class. Okay. Now I'll tell you later that there is something known as inputting from the user. You have to input certain values from the user. Right now, I'm not talking about that. So those programs where we have to take input from the user, those programs will start with an import statement. मैं क्या बोल रहा हूँ? एक बार मैं repeat कर देता हूँ. आगे के क्लासेस में तुम्हें सिखाऊंगा how to input values from the user. Input values from the user. User से input लेना है values. जिन प्रोग्राम्स में तुम्हें यूजर से इनपुट लेना है वैल्यूज, उन प्रोग्राम को तुम्हें स्टार्ट करना होता है इंपोर्ट स्टेटमेंट से. वो मैं आगे बताऊंगा कमिंग क्लास. बट टुडे आवर प्रोग्राम्स डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इनपुटिंग वैल्यूज फ्रॉम द यूजर. ये पार्ट नहीं है हमारा. सो वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विथ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास. हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज अभी नहीं करना है. जब हम इनपुट करेंगे तभी हम इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करेंगे, इंपोर्ट स्कैनर क्लास को यूज करेंगे. मैं बाद में वो डिस्कस करूंगी. सो राइट नाउ आई एम स्टार्टिंग माय प्रोग्राम. तो मैंने ऑलरेडी, मैं तो यहाँ पे भी टाइप करके लिख सकता हूँ. आई कैन टाइप माय प्रोग्राम लाइक दिस हियर. ऐसे मैं लिख सकता हूँ क्लास. मैं कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ. ओके, लाइक दिस. एंड क्लास का नाम जैसे डेमो. क्लास कीवर्ड है. जो भी कीवर्ड है वो रेड हो जाता है अपने आप. कैन यू सी द वर्ड क्लास हैज बिकम रेड ऑफ इट्स ओन बिकॉज इट इज अ कीवर्ड. लेकिन अगर मैं सी को कैपिटल लिख देता हूँ, now अब देखो C red नहीं हुआ because only small c, small a, small c, small l, small a, small s class is a keyword. So now compiler has not recognized it as a keyword. Only when you write C small, then it changes to red. It is a keyword. Demo, the word demo is user defined. It is an identifier. ठीक है? इसके बाद मैं क्या करता हूँ? Class create हो गया. इसके बाद मैं कर्ली ब्रेस ओपन करूंगा. कर्ली ब्रेस. और जैसे मैंने एंटर की दबाया, ऑटोमेटिकली द क्लोजिंग कर्ली ब्रेस आल्सो गेट्स प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन. वो मैंने प्रिंट नहीं किया. क्लोजिंग कर्ली ब्रेस वो अपने आप आ गया. यू कैन ट्राई दैट. अब मुझे अपना प्रोग्राम इसके अंदर लिखना है. नाउ आफ्टर अ क्लास got created, I have to write my program within it. The first thing that I will do, I will create a main function. What is the main function? Understand.
जावा में एक कॉन्सेप्ट है फंक्शंस बोल, जिसे हम कहते हैं भी बोलते हैं, फंक्शंस को मेथड्स भी बोलते हैं। नाउ ये क्या है, जावा में कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शंस है, कुछ इनबिल्ट फंक्शंस है। तो मेन एक इनबिल्ट फंक्शन है जो जावा के लाइब्रेरी में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। इट इज एन इनबिल्ट फंक्शन। कोई भी प्रोग्राम हम जब लिखते हैं तो जावा कंपाइलर उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से ही स्टार्ट करता है। कहां से स्टार्ट करता है एग्जीक्यूशन? मेन फंक्शन से ही स्टार्ट करता है। जावा कंपाइलर पूरे प्रोग्राम में जहां पे मेन फंक्शन है, उस मेन फंक्शन के अंदर जो भी कोड्स हैं वहां से स्टार्ट करता है एग्जीक्यूशन। तो अभी मैं यहाँ पे मेन फंक्शन को क्रिएट करना करूंगा। मेन फंक्शन कैसे हम क्रिएट करते हैं? वी कैन सिंपली राइट मेन एंड फंक्शंस को हमेशा राउंड ब्रेस ओपन, राउंड ब्रेस क्लोज, इस तरह से हम डिनोट करते हैं। सिंपल मैंने लिख दिया मेन। अब हम मेन का ब्लॉक क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने क्लास का ब्लॉक क्रिएट किया, ब्लॉक का मतलब कर्ली ब्रेस ओपन, कर्ली ब्रेस क्लोज। अब मैंने मेन का भी कर्ली ब्रेस ओपन एंड यू सी जैसे मैंने एंटर की दबाया अपने आप एक कर्ली ब्रेस नीचे का भी आ गया। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्रेस। मैंने ये ब्रेस टाइप किया, लेकिन ये नीचे वाला ब्रेस अपने आप आ गया, बिकॉज जावा नोज कि अ ब्लॉक विल बी एनक्लोज्ड विद इन 2 कर्ली ब्रेसेस। तो नाउ व्हाट कैन यू सी कि हमारा क्लास का ओपनिंग ब्रेस ये वाला है एंड क्लोजिंग ब्रेस ये वाला है, और उस क्लास के अंदर एक मेन फंक्शन क्रिएट हुआ है जिसका ये ओपनिंग ब्रेस है, ये क्लोजिंग ब्रेस है। तो इस मेन के अंदर मैं जो भी लिखूंगा दैट विल बी द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। वी कैन कॉल इट बॉडी ऑफ द मेन ब्लॉक। एंड जावा का प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट रिटन विद इन द मेन ब्लॉक। कंपाइलर को पता है जहां मेन है वहीं से स्टार्ट करना है एग्जीक्यूशन। मैंने यहां लिख दिया। ओके, कमिंग टू द प्रोग्राम नाउ। अब मैं मेन के अंदर मैं सिंपल सा एक प्रोग्राम लिख रहा हूं। मैं सिंपल सा एक प्रोग्राम लिख रहा हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैं प्रिंट कर रहा हूं इंडिया। इस तरह से लिखता हूं, एनक्लोज इन डबल कोट्स। फिर मैं प्रिंट कर रहा हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इस बार मैं एलन नहीं कर रहा हूं, इस बार मैं प्रिंट लिख रहा हूं। सपोज मैं लिख रहा हूं भारत, ठीक है। अब मैं फिर से प्रिंट कर रहा हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इस बार मैं सपोज माई कंट्री लिख देता हूं, माई कंट्री। Okay, now my dear students, what do you expect this program to give the output? How will the output come? What do you expect? देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम मेरा कंप्लीट हुआ। यू हैव टू चेक वंस कि तुम्हारा मेन बॉडी क्लोज्ड, ओपन एंड क्लोज्ड होना चाहिए, तुम्हारा क्लास भी ओपन एंड क्लोज्ड होना चाहिए। अगर ओपन किया तो क्लोज्ड होना भी चाहिए। अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। नाउ इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है? इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है? इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट है कि इंडिया प्रिंट होगा। कंपाइलेशन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कोड, फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर मेन, इंडिया विल बी प्रिंटेड एंड देन ln इज देयर इन दिस कोड, सो द कर्सर विल गो डाउन, यहां पे आ जाएगा। फिर भारत विल बी प्रिंटेड इन द नेक्स्ट लाइन, बट नो ln इज देयर, सो द कर्सर रिमेन्स आफ्टर t ऑफ भारत एंड देन माई स्पेस कंट्री। ये जो माई कंट्री है ये भारत के लाइन में ही प्रिंट होगा, बिकॉज भारत के साथ कोई एंटर की नहीं था। So this is the expected output. Let us see whether really Java compiler gives this output or not. Now before I compile this program, let me tell you that जब हम main method को declare करते हैं यहाँ पे, उसके साथ
हम उसके रिटर्न टाइप को भी लिखते हैं। रिटर्न टाइप क्या है ये मैं आगे मेथड से पढ़ाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। तो मेन का जो रिटर्न टाइप हम यहाँ लिख रहे हैं वो है वॉइड। वॉइड वॉइड मैं लिखा दूंगा आगे नोट्स में, डोंट वरी अबाउट इट। जब मैं मेथड्स पढ़ाऊंगा ना वॉइड क्या होता है, वॉइड एक रिटर्न टाइप है जो ये बताता है कि ये मेन फंक्शन कुछ भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। आई नो दैट इट इज thing which you are not understanding right now very clearly when you will study the chapter, functions which is in class 10th। देखो 9th वालों को तो वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो फंक्शंस चैप्टर जो है वो 10th में है। तो मैं आगे के लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा। तो जब मैं फंक्शंस डिस्कस करूंगा यानी मेथड्स डिस्कस करूंगा तो मैं वहां डिस्कस करूंगा कि रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है और वॉइड का क्या मीनिंग है। एज ऑफ नाउ कभी भी मेन लिखेंगे यहाँ पे, उसके आगे हम वॉइड उसका रिटर्न टाइप होता है उसको हम लिखेंगे। तो कमिंग टू दिस मेन, हियर आई विल राइट वॉइड मेन। अब देखो जैसे वॉइड मैंने लिखा वो एक कीवर्ड था विदाउट एनी पंक्चुएटर, तो वो रेड हो गया। अगर किसी कीवर्ड में पंक्चुएटर उसके साथ अटैच रहता है, जैसे सिस्टम भी कीवर्ड है लेकिन उसके साथ डॉट है, पंक्चुएटर है, तो वो रेड नहीं होगा। अ सिंगल वर्ड विच इज अ कीवर्ड दैट विल बिकम रेड। तो वॉइड रेड हो गया। मेन के साथ पंक्चुएटर्स है, राउंड ब्रेस ओपन क्लोज, तो वो रेड नहीं हुआ है। तो हमारा वॉइड मेन हमने मेन मेथड क्रिएट कर लिया, मेन के अंदर किया। अब मैं इसको कंपाइल करूंगा। यू कैन सी देयर इज अ बटन कंपाइल, यू कैन सी माय माउस पॉइंटर कंपाइल पर है। मैं कंपाइल पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया क्या नीचे लिखा हुआ आ रहा है, नीचे यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर्स। क्योंकि मेरे प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर नहीं है तो मेरा क्लास कंपाइल्ड हो गया है, मतलब मेरा प्रोग्राम कंपाइल्ड हो गया है, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। अगर मैं अभी जानबूझकर यहाँ पे कुछ सिंटैक्स एरर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ सेमीकोलन को मिटा दिया, कैन यू सी देयर इज अ सेमीकोलन एक्सपेक्टेड हियर बट आई हैव इरेज्ड द सेमीकोलन। तो मैंने जानबूझकर मैंने एक सिंटैक्स एरर क्रिएट किया। अब मैं कंपाइल को यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने कंपाइल क्लिक किया यहाँ देखो क्या बता रहा है, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड लिख दिया है, वहां उस स्टेटमेंट को हाईलाइट भी किया है और लिख दिया सेमीकोलन एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है। सो दे हैव आल्सो टोल्ड अस आवर सिंटैक्स एरर्स, सो वी विल गो ओवर देयर एंड वी विल रेक्टिफाई आवर एरर। ठीक है, कर दिया। फिर मैं फिर से कंपाइल कर देता हूँ, कंपाइल कर दिया और प्रोग्राम इज कंपाइल्ड। अब नीचे देखो लिख दिया है ना नो सिंटैक्स एरर्स। ओके, नाउ आई विल मिनिमाइज दिस, मिनिमाइज कर दिया। अब मैं वापस आता हूँ होम स्क्रीन ऑफ दिस ब्लूजे सॉफ्टवेयर। यहाँ पर ये डेमो, इसको मैं अब रन कैसे करूंगा, इस पे जाऊंगा, अगेन राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा। अब देखो क्या आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, न्यू डेमो, न्यू डेमो, इस पे मैं क्लिक करूंगा। अब क्लिक करने के बाद मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। ऑब्जेक्ट यानी इंस्टेंस, ऑब्जेक्ट को ही तो बोलते हैं इंस्टेंस ऑफ क्लास। तो मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। ऑब्जेक्ट का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी एक नाम उन्होंने दिया हुआ है डेमो 1, तो उसको लेट इट बी। मैं चेंज भी कर सकता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट डेमो 1 ही रहने देता हूँ। मैंने ये अब क्रिएट कर लिया एंड यू विल बी एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट हियर एट द बॉटम में वो ऑब्जेक्ट दिखेगा डेमो 1। ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास नेम, डेमो इज द क्लास नेम। देखो ये क्लास नेम है जो हमारा क्लास का नाम है, और डेमो 1 ये ऑब्जेक्ट का नाम है या फिर जिसे हम कह सकते हैं इंस्टेंस का नाम है, जिसमें हमने क्रिएट किया है इस, जिसको हमने क्रिएट किया इस क्लास के अंदर। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन कैसे करूंगा, इस प्रोग्राम को रन कैसे करूंगा, मैं जाऊंगा इस डेमो 1 ऑब्जेक्ट रेड आइकन के ऊपर, मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन है इनहेरिटेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट, वॉइड मेन, इंस्पेक्ट एंड रिमूव। मैं जाऊंगा वॉइड मेन पर। वॉइड मेन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वॉइड मेन से, तो मैं वॉइड मेन पे क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा आउटपुट स्क्रीन खुल जाएगा, मुझे आउटपुट दिखेगा। मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैंने क्लिक किया, यू कैन सी द आउटपुट स्क्रीन हैज कम। जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वही आया है, इंडिया, भारत, और उसी लाइन में विदाउट एनी स्पेस माई स्पेस कंट्री।
This is how it has come. This is the output window, जिसे terminal window कहते हैं. You can see written terminal window. ठीक है? So मैं close कर देता हूँ. So this is the first program that we have created. Now I will move to the next program, and I will also discuss how will that program give the output. Now I will create another program within the same project. So I'm not creating a new project. I'm just creating a new class. मैंने new class पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद फिर से मुझे क्लास नेम क्रिएट करना है. इस बार सपोज मैं क्लास नेम प्रिंट num print num, ये मेरा क्लास नेम. You can see this is a valid class name. P capital, N capital, rest of the things are small. Okay, print num, मैंने ओके कर दिया. print num नाम का क्लास क्रिएट हुआ. अब मैं जैसे बताया था राइट क्लिक करूंगा, ओपन एडिटर करूंगा, एडिटर खुल जाएगा. एडिटर को मैं कंट्रोल ए से पूरी चीजों को डिलीट कर दूंगा. आई विल राइट द प्रोग्राम. मैं प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास का डिक्लेरेशन से. क्लास प्रिंट num, ये हमारा क्लास नेम है. उसके बाद ब्रेसेस मैंने क्रिएट किया. जैसे ही मैंने ओपनिंग ब्रेस टाइप किया और एंटर प्रेस किया, क्लोजिंग ब्रेस अपने आप क्रिएट हो गया. void main, हमारा मेन फंक्शन को मैंने क्रिएट किया, मेन का ब्लॉक क्रिएट किया. अब इसके अंदर मैं लिखूंगा एक प्रोग्राम. अब मैं यहाँ पे यहाँ पे दो वेरिएबल्स को मैं डिक्लेयर करूंगा. int a इज इक्वल टू 5. ठीक है, ये एक मैंने वेरिएबल इस तरह से मैंने सिखाया है. दिस इज हाउ वी डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ वेरिएबल. अब देखो, a नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें मैंने 5 को इनिशियलाइज किया. यहाँ पे एक और वेरिएबल मैं क्रिएट करूंगा, वो भी int b इज इक्वल टू मान लो 7 उसका वैल्यू. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द स्क्रीन. हियर आई हैव क्रिएटेड टू वेरिएबल्स. Both of the variables are of int data type. Now there is a provision in Java where you can, instead of writing two different statements like this, you can just write it in one statement. What is it? तुम ऐसे लिख सकते हो, int a is equal to 5, comma b is equal to 7. b के लिए अलग से int लिखने का जरूरत नहीं है अगर कॉमा से हम सेपरेट कर रहे हैं. तो Java will understand कि int a के लिए भी है, int b के लिए भी है, क्योंकि यहाँ पे कॉमा है और यहाँ पे तुम्हें लास्ट में फाइनली एक सेमीकोलन देना पड़ेगा. So this is also a way, or the way I have written, that is also okay. So either of the two is fine. तो आगे मैं बढ़ता हूँ. तो आगे मैं क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ दो ऑपरेटर्स का बेसिकली तुम्हें यूज बताने की कोशिश कर रहा हूँ. मैंने इसके बाद क्या किया, a इज इक्वल टू b लिख दिया. उसके बाद मैंने क्या किया, सिस्टम डॉट out dot print ln a, system dot out dot print ln a is equal to b. बस ये मेरा प्रोग्राम है. Now in this program I'm basically telling you about the utility of two types of operators, this single equal to and double equal to. In one of my last videos, I have theoretically explained you what is the difference between this single equal to, this is an assignment operator, and this particular operator is equality relational operator. So what is this? तो इन दोनों का यूटिलिटी मैंने समझाया था. आज एक प्रोग्राम से इसको समझते हैं. ठीक है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा इन दोनों ऑपरेटर्स के बारे में. पहले इसका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो हम देखते हैं और फिर हम देखेंगे क्या हम जो एक्सपेक्ट करें वो वाकई हो रहा है. सो कमिंग टू द प्रोग्राम, सबसे पहले हमने क्लास को क्रिएट किया. वी हैव टू ऑलवेज क्रिएट अ क्लास एट द बिगिनिंग. देन यू कैन सी देयर इज अ ओपनिंग ब्रेस फॉर द क्लास and closing brace for the class. Our entire program is written within this class block, and then within the class block I have created a main function void main, and main के अंदर मैंने एक main block create किया. उसके अंदर our body है. This is known as the body of main. Execution कहाँ से start होगा,
कहां से स्टार्ट होगा? मैंने बोला है एग्जीक्यूशन विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मेन ब्लॉक, द फर्स्ट स्टेटमेंट रिटन इन द मेन ब्लॉक, दैट मींस एग्जीक्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। int a is equal to 5, इसका अभी हम मेंटली ड्राई रन करते हैं, मतलब किस तरह से काम करेगा। so int a is equal to 5, a variable named a will be created whose value is 5, then compiler comes here, a variable named b created whose value is 7, compiler comes here. Now my dear students, a is equal to b, this is not equal to sign, this is assignment operator. Then what is the function of the assignment operator? It assigns the value of b to a, यही तो assignment operator करता है। a equal to b का मतलब है कि b का वैल्यू a में असाइन कर दो। तो मुझे बताओ अभी अगर b का जो वैल्यू था वो a में असाइन हो जाएगा तो a का नया वैल्यू क्या हो जाएगा? What will be the new value of a? The new value of a will be 7. अभी a का वैल्यू 5 नहीं है, 5 हट गया, 5 deleted. The new value of a is 7 because the value of b comes to a. Value of b is initialized to, is assigned to a. तो b का वैल्यू 7 था, वो a में चला गया, लेकिन b का वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। तुमने देखा कि सिर्फ a का वैल्यू चेंज हो गया, b का वैल्यू चेंज नहीं हुआ। The value of b was earlier 7, now also it is 7, but a का वैल्यू earlier it was 5, but now it is 7. So the value of a gets changed. That means इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझना, एक a का वैल्यू b में नहीं जाएगा, b का वैल्यू a में जाएगा. This you have to understand nicely. Okay, so now the next code, system.out.println a. A is not written within double quotes. यहाँ double quotes मैंने नहीं डाला है. Only a is written. It means the value of a has to be printed. What is the value of a? A का value 7 है. Output screen में 7 print होगा. There is a ln here, so the cursor will go down in the next line. After printing 7, cursor नीचे आ जाएगा. उसके बाद क्या लिखा हुआ है? System.out.println a is equal to b. If you see a is equal to b, this is a relational operator. And in my previous lecture where I have discussed about this particular operator, I have explained very nicely in detail that relational operators always give two types of outputs. What are the two types of outputs? Either true और false. इसके अलावा relational operators और कोई भी वैल्यू को आउटपुट नहीं करता है. Relational operators returns either true or false depending on the values of the operands. तो यहाँ पे operands हमारा a है, b है. a और b का वैल्यू क्या इक्वल है? इक्वालिटी ऑपरेटर है, रिलेशनल चेक कर रहा है, क्या इक्वल है? नो. यस, नाउ दे आर इक्वल बिकॉज अभी हमारा a का वैल्यू भी 7, b का वैल्यू भी 7 हो चुका है. Earlier they were not equal, but now after updating a का value, the value of a is 7, b is also 7. Yes, this condition is true. So the output of what will be printed when I, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? इसका जो आउटपुट है वो क्या है? वो है ट्रू. तो system.out.println मैं यहाँ पे ट्रू को प्रिंट कर रहा हूँ. ट्रू प्रिंट करने के बाद ln है, ln will take the cursor to the next line. So हमारा expected output ये है 7 और नीचे लाइन में ट्रू. अब मैं देखता हूँ वाकई ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है. चलो मैं कंपाइल करूंगा. सबसे पहले आई विल क्लिक ऑन कंपाइल. देयर इज अ कंपाइल बटन, यू कैन सी आई एम क्लिकिंग ऑन इट. द मोमेंट आई क्लिक्ड यू कैन सी क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर्स. कोई सिंटैक्स एरर होता तो फिर यहाँ पे वो मुझे बताता. ऑलराइट, नाउ कंपाइल हो गया. मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ. कमिंग टू प्रिंट नाम, कैसे मैं इसको रन करूंगा? राइट क्लिक, न्यू प्रिंट नाम, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. ऑब्जेक्ट का नाम प्रिंट नाम 1, लेट इट बी. ओके क्लिक करूंगा. नीचे हमारा यू कैन सी रेड कलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है. इसमें राइट क्लिक करूंगा, वॉइड मेन पे क्लिक करूंगा एंड यू कैन सी 7 एंड ट्रू. ये जो पहले वाला इंडिया भारत माई कंट्री जो पिछले प्रोग्राम का था वो आउटपुट भी ऑलरेडी है, उसको मैंने डिलीट नहीं किया है. यू कैन सी द नेक्स्ट प्रोग्राम का आउटपुट 7 और नीचे ट्रू प्रिंट हुआ है जो एक्सपेक्टेड था. Okay, so this is how the program is working. I'm closing this now. I can clean the screen here if you want to clean so that in the next program these output do not come. So option पे जाओ, clear कर दो. ठीक है, clear करने के बाद एक बार मैं इसको फिर से रन करता हूँ. So close कर दिया. Again I'm opening void main. अब देखो
प्रीवियस वाले आउटपुट नहीं है, 7 and true is only there. प्रीवियस वाला मैंने क्लियर कर दिया था, ठीक है. नाउ आई एम अगेन क्लियरिंग इट बिकॉज जब मैं नेक्स्ट थर्ड प्रोग्राम करूंगा तो ये आउटपुट नहीं होना चाहिए, मैंने क्लियर कर दिया. अब क्लियर करने के बाद मैंने क्लोज किया, ठीक है. दिस इज हाउ वी हैव टू write a program, we have to compile a program and we run a program. I hope this is clear. अब मैं if और if else के बारे में अभी थोड़ा डिस्कस करूंगा तुम लोगों के साथ. So our topic is decision making statements. In this, what is the first thing that we are going to study? Decision making statements. The first statement जो हम पढ़ने वाले हैं वो है if statement. If statement. The if statement is a decision making statement in Java. The if block gets executed only when the test expression, जिसको हम कहते हैं कंडीशन एक्सप्रेशन या कंडीशन, is evaluated true. देखो क्या लिखा हुआ है. The if statement is a decision making statement. जावा कंपाइलर यहाँ डिसीजन लेता है. क्या डिसीजन लेता है कि क्या एग्जीक्यूट करेंगे या नहीं करेंगे, एक डिसीजन लेता है. तुम भी डिसीजन लेते हो ना, क्या आज मैं चाउमीन खाऊंगा या नहीं खाऊंगा. अगर पेट खराब है तो चाउमीन नहीं खाऊंगा, अगर पेट खराब नहीं है तो चाउमीन खाऊंगा. इफ माय डाइजेस्टिव सिस्टम इज ओके आई विल ईट चाउमीन, एल्स आई विल नॉट ईट चाउमीन. तो तुम भी तो इफ एल्स करते हो लाइफ में. हमारे पापा भी इफ एल्स करते हैं. इफ माय चाइल्ड्स मार्क्स आर गुड आई विल थ्रो अ पार्टी, एल्स आई विल नॉट थ्रो अ पार्टी. डिसीजन लेता है. जावा कंपाइलर भी इफ एल्स से डिसीजन लेता है. तो अभी हम एल्स पार्ट को नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ इफ, क्योंकि सिर्फ इफ से भी डिसीजन लेते हैं. लाइफ में ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां पे एल्स का जरूरत नहीं है, सिर्फ इफ का जरूरत है, ठीक है. तो अगर ये होगा तो मैं वो करूंगा, सिंपल सी बात. उसके अलावा कोई दूसरा एस्पेक्ट नहीं. तो वैसे सिचुएशन में हम सिर्फ इफ को देखते हैं. हम प्रोग्राम्स के रियल प्रोग्राम्स में भी इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा जहां सिर्फ इफ की जरूरत है, एल्स की हमें जरूरत नहीं है. अब क्या लिखा हुआ है? The if statement is decision making statement in Java. The if block gets executed only when the test expression या condition is evaluated true. अगर वो condition जो if के साथ linked है वो true होता है तभी if block execute होता है. इसका syntax लिख लो, बड़ा ही simple सा है. if पहले लिखते हैं if स्मॉल में, उसके बाद कंडीशन लिखते हैं इसके अंदर. कंडीशन का मतलब ही है टेस्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं और फिर क्लोज करते हैं राउंड ब्रैकेट से. देयर इज नो सेमीकोलन पुट, यहाँ कोई सेमीकोलन मत देना. और फिर हम कर्ली ब्रेस ओपन क्लोज और इसके अंदर हम लिखते हैं बॉडी ऑफ इफ ब्लॉक, जो भी हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं अगर ये कंडीशन ट्रू है तो. ओनली इफ दिस कंडीशन इज ट्रू this body of the if block will get executed. Let us write a real program now to understand it better. Coming to my BlueJ once again. अब मैं क्या करूंगा, BlueJ दिख रहा है तुम लोगों को. अब मैं न्यू क्लास क्रिएट करूंगा. क्लास का नाम अब मैं दे देता हूं, सपोज डिसीजन दे देता हूं, डिसीजन. ओके क्लिक किया, डिसीजन नाम का क्लास क्रिएट हो गया. इस पे एडिटर पे जाऊंगा, ओपन एडिटर, इसको पूरा डिलीट करूंगा, एक प्रोग्राम लिखूंगा क्लास डिसीजन. क्लास का ब्रेसेस ओपन क्लोज आ गया. वॉइड मेन इसका भी आ गया.
मेन ब्लॉक का ब्रेसेस। अब मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, सपोज इंट a इज इक्वल टू 16, कॉमा, इस बार देखो मैं दो वेरिएबल्स क्रिएट कर रहा हूँ एक ही लाइन में, कॉमा से सेपरेट करके। पिछले वाले प्रोग्राम में मैंने अलग अलग स्टेटमेंट में लिखा था, इस बार मैं एक ही में कर रहा हूँ। कॉमा b इज इक्वल टू 4, इसीलिए मैंने b के लिए अलग से इंट नहीं लिखा है, इंट वर्ड कॉमन है पर a ऑल्सो b ऑल्सो, क्योंकि कॉमा से सेपरेटेड है। देन सेमीकोलन फाइनली। मैं थर्ड एक वेरिएबल भी क्रिएट कर सकता हूँ कॉमा से, सपोज c इज इक्वल टू समथिंग, मुझे जरूरत नहीं है, मैं दो वेरिएबल से ही इस प्रोग्राम में मेरा काम बन जाएगा। सो इंट a इज इक्वल टू 16 कॉमा b इज इक्वल टू 4, दो वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किया, a का वैल्यू 16 है, b का वैल्यू 4 है। अब मैं एक इफ लगा रहा हूँ, इफ you can see the color of if has become red because it's a keyword. If a mod, मैं इसमें mod ऑपरेटर तुम्हें बताया था ना, डिवीजन होता है जो रिमाइंडर आउटपुट देता है। So a mod b equal to 0, ये 0 है। This is how 0 is written, 0 gets typed in Java editor, ये 8 नहीं है, 0 है। So a mod b equals to 0। अब मैं if का क्रिएट किया, देखो if का ब्रेसेस, कैन यू अंडरस्टैंड इफ का ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस। इसके अंदर मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, कुछ भी प्रिंट करता हूँ, माय स्टूडेंट्स आर ग्रेट, देन इसको मैं सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दूँ। ये हो गया। अब देखो इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, पहले इसको कंपाइल कर लेते हैं, देखते हैं कुछ एरर्स है कि नहीं। देखो बिना कंपाइल किए हुए तुम रन भी नहीं कर सकते, तुम्हें कंपाइल करना ही पड़ेगा। कंपाइल कर दिया, लिखा हुआ है क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर्स, कैन यू सी हियर एट द बॉटम। तो ठीक है, अच्छी बात है। अब इसका हम एक्सपेक्टेड आउटपुट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आएगा कंपाइलर इंट a इज इक्वल टू 16, a एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, 16 उसका वैल्यू है, b एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, 4 उसका वैल्यू है। इफ a mod b इज इक्वल टू 0, मुझे बताओ सोचकर क्या ये कंडीशन ट्रू है? बताओ मुझे, तुम लोग अपने मन में ही सोचो एंड थिंक फॉर इट। a mod b इज इक्वल टू 0, क्या ये ट्रू है? देखो यहाँ पर a का वैल्यू 16 है, b का वैल्यू 4 है, एंड 16 डिवाइडेड बाई 4 में करूंगा तो ये मॉड ऑपरेटर है, दैट मींस डिवाइड करके रिमाइंडर इसका आउटपुट है। तो 16 को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो यस द रिमाइंडर इज 0, तो बिल्कुल ये 0 के इक्वल है, a mod b का वैल्यू 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने इक्वालिटी ऑपरेटर डाला है टू कंपेयर, असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं करूंगा, सिंगल इक्वल टू नहीं करूंगा, दैट हैज अ डिफरेंट पर्पस, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली। तो बिल्कुल ये कंडीशन ट्रू है। सो इफ दिस कंडीशन इज ट्रू ओनली देन ये इफ के अंदर प्रवेश करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता तो ये इफ के अंदर क्या जाता, क्या ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता? नहीं होता। लेकिन अभी ये कंडीशन ट्रू है, देन ओनली दिस कंडीशन, दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, द स्टेटमेंट विद इन इफ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। तो उसके अंदर आएगा, अब क्या लिखा हुआ है, माई स्टूडेंट्स आर ग्रेट, ये सेंटेंस आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट होगा। तो मैं देखता हूं, बिल्कुल होना चाहिए, मैंने कंपाइल तो ऑलरेडी कर दिया है। अब मैं इसको रन करूंगा, न्यू डिसीजन, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, ओके ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, वॉइड मेन में जाऊंगा, माई स्टूडेंट्स आर ग्रेट, ये आउटपुट स्क्रीन में यानी टर्मिनल विंडो में प्रिंट हो गया है। नाउ आई विल मेक द कंडीशन फॉल्स। पहले मैं इस ऑप्शन पे क्लियर कर देता हूं आउटपुट स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन में अभी कुछ नहीं। नाउ अभी मैं जाकर इसी डिसीजन प्रोग्राम को मॉडिफाई करूंगा, तो मैं डिसीजन में जाऊंगा, ओपन एडिटर पे क्लिक करूंगा। ओपन एडिटर पे क्लिक करने के बाद वो एडिटर प्रोग्राम खुल गया है। तो यहां पर अब मैं इस इफ सेंटेंस में कुछ एक बदलाव करूंगा, कंडीशन को फॉल्स करूंगा, इसको मैं 1 कर देता हूं। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गया बिकॉज इट इज नॉट इक्वल टू 1, रिमाइंडर इज नॉट 1, तो कंडीशन फॉल्स है, यानी फॉल्स होने के बाद ये माय स्टूडेंट्स आर ग्रेट प्रिंट नहीं होगा। एक बार कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल करने के बाद लिख रहा है नो सिंटैक्स एरर्स, ठीक है, अच्छी बात है। नाउ वी कम टू डिसीजन, न्यू डिसीजन,
ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, void main, जैसे मैं void main कर रहा हूं, नो आउटपुट, नो आउटपुट इज बीइंग गिवन, कुछ आउटपुट नहीं है। द रीजन इज बिकॉज देयर इज नथिंग टू प्रिंट, कोई आउटपुट है ही नहीं हमारे पास, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। द टर्मिनल विंडो इज नॉट ओपनिंग इट्स एट ऑल, ओपनिंग हो ही नहीं रहा है टर्मिनल विंडो का। तो ये है हमारा बात। अब हम चलते हैं इफ एल्स। इफ एल्स का मतलब अगर ये नहीं होगा तो दूसरा चीज होगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। मतलब कमिंग टू दिस वेरी सिंपल, इसी में मैं हम कर सकते हैं, उसी प्रोग्राम में मॉडिफाई करूंगा। पहले मैं इसमें लिखा देता हूं, राइट डाउन if else statement next. Generally we use if else only in our programs, क्योंकि most of the cases में हम अगर ये नहीं होगा तो वो होगा, ऐसा ही होता है। और हमारे लाइफ में भी मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं। हर बात के दो पहलू होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर ये नहीं होगा तो फिर वो होगा। तो इफ पार्ट अगर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो जो एल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये जिन एकदम प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेटेड है, ये बिल्कुल सिंपल। तो लिख लो, द इफ एल्स स्टेटमेंट इज अ decision making statement in Java. The if block gets executed only when the test expression is evaluated true, otherwise the else block gets executed. Otherwise the else block gets executed. इतना सिंपल है। अगर if true है तो ही if execute होगा, otherwise the else block will get executed. इसके सिंटैक्स लिख लेते हैं। Let me shift it up. अब इसका सिंटैक्स लिखो। इफ, इसके साथ इसका कंडीशन यानी टेस्ट एक्सप्रेशन, और इसके अंदर इफ का बॉडी, ये हो गया इफ का बॉडी। ठीक है, तो लिख देते हैं बॉडी ऑफ इफ ब्लॉक। एल्स नाउ ध्यान देना, इफ ब्लॉक को मैंने ओपन क्लोज कर दिया, उसके बाद मैं लिख रहा हूं एल्स। एल्स के साथ कोई भी कंडीशन नहीं होता है, सिर्फ एल्स के साथ। देयर इज नो कंडीशन रिटन विद एल्स, सिर्फ हम एल्स का ब्लॉक क्रिएट करेंगे और यहाँ पे उसका बॉडी होगा, इसके अंदर बॉडी ऑफ एल्स ब्लॉक होगा। ये एल्स ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब इफ ब्लॉक फॉल्स हो जाएगा। अगर इफ ब्लॉक ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू होगा, तो फिर एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। इट इज एज सिंपल एज दिस। कमिंग टू अ प्रोग्राम based on this, I will modify the same program itself. तो देख रहे हो यहाँ पे वो एडिटर है जिस एडिटर पे मैं इफ एल्स कर रहा था। मैं इस कंडीशन को अभी ट्रू बना देता हूँ। एक बार मैंने इस कंडीशन को ट्रू बना दिया तो ट्रू कंडीशन है। इसके बाद मैं एल्स लिख रहा हूँ यहाँ पे। इफ ब्लॉक कंप्लीट करने के बाद एल्स ब्लॉक मैं क्रिएट कर रहा हूँ और एल्स में मैं प्रिंट करूंगा। तो एल्स ब्लॉक मैं क्रिएट कर देता हूँ। एल्स ब्लॉक क्रिएट हो गया। इसके अंदर मैं लिखूंगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन माई स्टूडेंट्स आर लवली। दो ऑप्शंस, एक है माई स्टूडेंट्स आर ग्रेट और एक है माई स्टूडेंट्स आर लवली। तो इस प्रोग्राम में हमारा कंडीशन ऑफ इफ इज ट्रू, हमारा इफ कंडीशन ट्रू है, सो हमारा कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट होगा? इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज दिस कंडीशन इज ट्रू।
इस केस में हमारा माय स्टूडेंट्स आर ग्रेट, ग्रेट वाला प्रिंट होगा, लवली वाला नहीं। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, पहले कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के बाद नो सिंटैक्स एरर्स आ गया। नाउ आई विल मूव टू द दिस थिंग, इस पे आता हूं डिसीजन पे। अब इसको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, जैसे मैं करता हूं। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, void main। अब देखो माय स्टूडेंट्स आर ग्रेट, ये प्रिंट हो गया, ग्रेट प्रिंट हो गया, लवली नहीं। लेकिन अब मैं कंडीशन को फॉल्स करूंगा। पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, बंद करता हूँ, डिसीजन पे जाऊंगा, एडिटर पे जाऊंगा, और अब मैं इस कंडीशन को फॉल्स कर दिया, इसको मैं सपोज 4 कर दिया। तो a mod b is not equal to 4, this condition is false। तो false तो कौन सा, else part will, if part will not be executed, else part will be executed, because this condition is false right now। So my students are lovely, this will be printed in this case, my students are lovely। Let us compile it and check it। कंपाइल करूंगा, नो सिंटैक्स एरर्स आ गया, मिनिमाइज कर दिया, वापस से मैं गया डिसीजन पे, न्यू डिसीजन, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, void main, my students are lovely प्रिंट हुआ, मतलब else block execute हुआ। So this is how if and else block works। Okay, so in my coming videos I will discuss more programs on decision making statements। Till then, all of you practice programs whichever I have done, all of you download BlueJ software if you have not downloaded yet, and practice a lot of programs on your own। Have a nice day, take care, God bless you all।